Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Yahya Noori, and I am today back with a new case, and we are going to talk about sickle cell anemia and types of gene mutations. So this is basically from first year, but you can obviously think about it in terms that you will come across mutations in all of years when you will study pathology. So it's better to develop an understanding of what mutations are and how they develop and what their effects could be. So, sickle cell anemia and types of gene mutations. This is your case. A male toddler with sickle cell anemia. A 3-year-old child was seen in the OPD with a history of on and off abdominal and joint pains. He was pale looking and had jaundice. On examination, the child was observed to have mild splenomegaly. There was a history of a sibling dying at 3 years of age, so this will give you an idea that it's probably some sort of familial problem due to fever and jaundice, so it might have a genetic basis. Jaundice, liver is involved, or it could be a prehepatic jaundice, a hepatic jaundice, a posthepatic jaundice. Um, Fever, so maybe the child had an infection. Anyway, the blood picture showed anemia. Red cell morphology revealed severe anisocytosis and poikilocytosis. What is anisocytosis? You have unequal type of or different looking RBCs, and poikilocytosis is the presence of the abnormally looking RBCs which are more than a particular um, level. So also seen were microcytic hypochromic RBCs. So microcytic smaller than the size, the normal size, and hypochromic having a low color. Target cells, if you have seen that target we use um, for maybe shooting practice or dart practice, you would understand that. Board cells, which look like boards, and they are generally common in sickle cell anemia and the sickled RBCs. Hemoglobin was low. Further testing revealed sickle cell anemia. That could have been hemoglobin electrophoresis, the type of mutations that leads to sickle cell anemia is. So we are back to the genetic problem. What type of mutation was it? So there are 5 options: a deletion, a translocation, a duplication, a substitution, or an insertion. What happens in a deletion is that a portion of the genetic code of a gene, so maybe 1, 2, 3, 4, or maybe more bases, they are removed. Translocation, um, the pieces of gene or maybe a whole gene, they get they shift places with each other. Duplication, the code gets doubled or a region of the chromosome gets doubled. Substitution, one type of base is replaced by the other type of base. And insertion, another piece of DNA gets inserted into the normal into some abnormal place. So substitution is your answer. Now we'll switch uh, to the Urdu language, and we'll talk about what sickle cell anemia is and what the type of mutations are. तो जनाब सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमें इस किस्म की कुछ पिक्चर मिलती है जब आप आरबीसीज को देखेंगे। आपको यहाँ ये टारगेट सेल्स देखे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन जनरल पिक्चर अगर आप नॉर्मल आरबीसीज होते तो ये थोड़ी सी हाइपोक्रोमिक है। बोर्ड सेल्स ये देखें, बोर्ड सेल्स ऐसे, एंड ये सिकल सेल्स, ठीक है। आरबीसीज के अंदर शेप डिफॉर्मिटीज़ हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, और अनइक्वल इन साइज है, सो दैट इज एनाइसोसाइटोसिस, ठीक है। सो होता क्या है बेसिकली कि आपके पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए की जो बीटा चेन्स हैं उनके अंदर एट टाइम्स जेनेटिक चेंज आ जाता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि पोजीशन 6 ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन अनस्टेबल हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और क्लम्प हो जाते हैं, और नतीजतन उसकी वजह से फिर सिकल सेल डिजीज़ के जो हैं वो क्राइसिस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स ऑफ दोज सिम्टम्स फ़िलहाल।
मे बी इन जब हम सिकल सेल एनीमिया को एज अ केस स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तब, जब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं जनाब कि म्यूटेशंस क्या होते हैं। सो हमारे पास जीन लेवल के ऊपर म्यूटेशंस जो हैं वो मेनली 3 किस्म की होती हैं: सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। अच्छा, एक बात और जहन में रखें कि कुछ जो म्यूटेशंस हैं दे आर ऑब्जर्व्ड एट द क्रोमोसोमल लेवल, तो उनको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन अगर सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, जिसको डी और एमसीक्यू। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके कोडॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड चेन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे लगेगा। सो फॉर एग्जांपल एलेनिन है तो इसके लिए 4 कोडॉन्स मौजूद हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि ये एलेनिन होगा इस पोजीशन के ऊपर। सो अगर हम ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड है AUG, हमेशा पहला कोडॉन होता है और इसकी वजह से मैथ्योनिन जो है वो पहला अमाइनो एसिड होता है जो कि किसी भी अमाइनो एसिड चेन के अंदर, पेप्टाइड चेन के अंदर लगता है। GCC इज़ फॉर एक्चुअली एलेनिन। आपको ये 4 कोडॉन जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं उसमें GCC इज़ वन ऑफ देम। TGC इज़ फॉर सिस्टीन। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर GCC कन्वर्ट हो गया GCT के अंदर, दैट मीन C इज रिप्लेस्ड बाय T, तो GCT बन गया और GCT भी एलेनिन ही कोड करता है। सो जेनेटिक लेवल के ऊपर चेंज आ गया मगर पेप्टाइड लेवल के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, अपनी जगह पे एलेनिन मौजूद है, बिकॉज जो नया कोडॉन बना है वो भी एलेनिन को ही कोड कर रहा है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, साइलेंट सब्स्टिट्यूशन है या साइलेंट म्यूटेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अमाइनो एसिड चेन के ऊपर, और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि अगर GCC की जगह GCA भी हो जाए तब भी एलेनिन ही होगा और GCG हो जाए तब भी एलेनिन ही होगा। मगर जनाब कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जगह एक स्टॉप कोडॉन लग जाता है, TGA इज़ अ स्टॉप कोडॉन। तो मैथ्योनिन और एलेनिन के बाद कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं हो रहा, यहाँ पे चेन टर्मिनेट हो गई एंड दिस इज नोन एज अ नॉनसेंस म्यूटेशन। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिफरेंट अमाइनो एसिड लग जाता है, फॉर एग्जांपल GGC कोड फॉर आर्जिनिन जो 4th वाला कॉम्बिनेशन है, तो अब हमारे पास सिस्टीन की जगह आर्जिनिन आ गया है, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉनसेंस टाइप ऑफ, सॉरी, दैट इज कॉल्ड अ मिससेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब क्या होता है जनाब कि अगर फॉर एग्जांपल ये हट जाएं, गायब हो जाएं नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ से, तो हम कहेंगे डिलीशन हो गई है। अगर एक्स्ट्रा घुस जाएं तो हम कहेंगे कि जो है वो इंसर्शन हो गई है। अगर ये 3 या 3 के मल्टीपल्स में हो तो उस सूरत में फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि जो 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है वही रहेगा, तो अमाइनो एसिड चेन अपनी बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक नाइट्रोजनस बेस घुस जाता है AUG और GCC के बीच में, तो आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल T घुस गया AUG के बाद, तो AUG और उसके बाद TGC एक नया कोडॉन बन गया। तो आगे आने वाली पूरी की पूरी जो अमाइनो एसिड चेन है उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो डिफरेंट होंगे जो कि नॉर्मल अमाइनो एसिड हैं। तो ये सब प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी, वो एक डिसफंक्शनल प्रोटीन होगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो जनाब दैट्स इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे फिर 1-2 दिन में मुलाकात होती है अगले किसी केस के साथ, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और सेकेंडली ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त को उससे फ़ायदा हो सकता है तो उस तक से ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।